Somebody should please remind me this thing every day. जो LC है ना क्लास के, कौन है ये? गोविंद. Should remind me Yes, these ma'am. two thing, the recording Okay, first ma'am. and the attendance second. Okay, ma'am. Yes. Now there are, I think so, 22 participants so far. So I think so only 1 or 2 students will be absent. 2 students, ma'am. 2 students. Okay, so see, I'll share my screen now. Okay, screen is visible. Yes, ma'am. Yes, so we have discussed about DC generator. Basic principle E is equals to d phi by dt. Then we have discussed how to make a design, and we have I think so in your lecture only we have discussed one diagram from internet also. The construction of a DC generator and DC motor is one and the same. Only what is the difference? Difference क्या आता है DC motor and DC generator में? मैम डीसी मोटर में करंट कैरिंग कंडक्टर वो मैग्नेट्स में फ्लक्स को ब्रेक करता है ताकि मोशन जनरेट हो. हाँ, उसका प्रिंसिपल डीसी क्या है? जनरेटर में DC जनरेटर में मैम डीसी जनरेटर में मैम जनरेटर में इज लाइक डी फाई बाई डी टी. सो मैम जो कंडक्टर है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है एंड वो जो मैग्नेटिक फील्ड को जब वो कंडक्टर ब्रेक करता है तब ईएमएफ इंड्यूस होती है एंड वो ईएमएफ हम बाद में यूज करते हैं. सो ये जनरेटर में होता है एंड मैम मोटर में कंडक्टर के पास ही करंट होता है और वो जब उससे जब मैग्नेटिक लाइंस पास होती हैं तब वो रोटेट करना शुरू हो जाता है एंड इससे मोशन क्रिएट. यस, दिस इज द बेसिक. यस. तो क्या होता है अभी फिजिकली समझो. डीसी मोटर में हम लोग प्लग इन करते हैं, है ना, सप्लाई देते हैं. हम लोग घर के मोटर में क्या करते हैं? वी आर जस्ट प्लग इन. जो मोटर का प्लग रहता है वो क्या करते हैं हम लोग? सॉकेट में इंसर्ट करते हैं, राइट ना. तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं? दैट वी आर गिविंग सप्लाई टू द कंडक्टर्स. ओके, फील्ड तो अपनी है अंदर क्रिएटेड जो डीसी से मिलेगी उनको. ओके, और हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं फिर कंडक्टर को. तो फिर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 2 फील्ड्स, है ना. हम लोगों ने दोनों फील्ड ड्रॉ करके देखे थे क्या? एन पोल एंड एस पोल. प्रोडक्शन ऑफ लो फ्लक्स डेंसिटी एरिया, हाई फ्लक्स डेंसिटी एरिया. देखो बेसिकली क्या होता है. सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा एन पोल रहेगा, सपोज एस पोल है. सो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ, दिस इज द मेन फील्ड फ्लक्स. ये क्या जनरेट हो गए? मेन फील्ड फ्लक्स जनरेट हो गए लाइक दिस, विच आर गोइंग फ्रॉम एन पोल टू एस पोल. ओके, देन व्हाट इज, देन इसके बाद क्या होने वाला है? सपोज इन दिस फील्ड देयर इज अनदर कंडक्टर. ये तो है ही. इसके बीच में क्या है? देयर इज अनदर कंडक्टर. सपोज दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट इज गोइंग इनवर्ड, है ना, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. तो current carrying conductor will produce magnetic field which will be in the form of concentric circle like this. What will be the direction, clockwise or anti-clockwise? What will be the direction of this magnetic field? Current is going into the plane of paper, है ना. So it will be clockwise. So it will be like this. So if you observe these both figures, देखो, on the left hand side both these fields are getting cancel up each other because these flux are going upward, these flux are coming downward. So क्या कर रहा है? नेट फ्लक्स से इसका क्या हो गया? यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा.
Whereas in case of this right hand side, see these fluxes are coming downward, these fluxes are also coming downward. So यहाँ पे क्या होगा, net addition होगा. तो final diagram कैसे बनती देखो, this is a N pole and this is a S pole. Okay, here it is your conductor. So क्या होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे there will be subtraction of fluxes, है ना. तो फ्लक्स का सब्सट्रैक्शन होने वाला है. तो देखो less amount of fluxes are available, only this much amount of fluxes are available. Okay, whereas in a right hand side what will happen, there is a group of fluxes, there is a high density fluxes are formed like this, because both the fluxes are getting add up, right? So there is a production of high flux density area and low flux density area. देखो, on the left hand side of the conductor we are having low flux density area, on the right hand side of the conductor we are having high flux density area, and conductor will get the push towards this side, है ना. तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर को एक पुश मिलेगा फ्रॉम लो फ्लक्स डेंसिटी टू हाई फ्लक्स डेंसिटी. ओके, कंडक्टर आगे चला जाएगा. फिर इसी के जगह पे सेकंड कंडक्टर आएगा, है ना. Same principle will happen with that conductor also. It will again get pushed. Then third conductor will come. Same happen. Again will push. Fourth will come. Again will push. So in this manner, what happened? This armature starts rotating. Okay. क्या होगा, क्या किया हम लोगों ने, कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया and we are getting mechanical output. So this three figures will depict the motoring action. And for motoring action, it is most important that there must be interaction between two fields and there must be the presence of two fields. Okay, तो हमेशा जब आंसर लिखोगे तो हमेशा ऐसे लिखने का, for motoring action there must be the interaction between two fields. Which two fields? field flux बोलने का इसको, this is main flux. Okay, or it is also called as a field flux. And second flux कौन से, the flux which is generated by current carrying conductor. And इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है. इंटरेक्शन के कारण लो फ्लक्स डेंसिटी एरिया एंड हाई फ्लक्स डेंसिटी एरिया क्रिएट होता है. कंडक्टर विल गेट पुश फ्रॉम लो फ्लक्स डेंसिटी एरिया टू हाई फ्लक्स डेंसिटी एरिया. सेम प्रिंसिपल हैपेंस with all the conductors, and hence your armature starts rotating and hence your motor starts rotating. Okay, so this is the basic principle behind the DC motor. So far we have covered DC generator, DC motor and some basic concepts related to this. Okay, यहाँ तक किसी को कुछ problem है? Everybody have understood? Yes, ma'am. So this is, we are just giving somewhat explanatory, somewhat explanation, because see, मैंने आपको machine 1 पढ़ाया नहीं है, so I am unaware about ना what is means what is the depth level of your knowledge. So I'm just giving somewhat polishing to you and nothing else. ठीक है. So this is the basic. उसके बाद तुमने transformer Yes, भी ma'am. देखा था, है ना. So can anybody tell me what is transformer? Or why we are using this transformer? Step up or step down voltage. Huh? Transformer is used to step up or step down the voltage. Step up and step Transfer down voltage electrical नहीं रे energy. बाबा. Transfers electrical energy from one electrical circuit to another. Without changing the frequency. Without changing the frequency, है ना. चलो सबने मिलके एक अच्छा डेफिनेशन बताया है ना. ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस. सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में जब भी हम लोग बात करेंगे तो सभी डिवाइसेस क्या है, डायनामिक डिवाइसेस है. मोटर में भी रोटेशन होता है, जनरेटर का भी पार्ट आर्मेचर रोटेट होता है. In each and every motor there is a somewhat dynamic parts are there, but in a transformer this whole device is a static device. Okay, so transformer is a static device which converts electrical power from one electrical circuit to another electrical circuit. Okay, with a change in voltage and without change in its frequency. ठीक है. So how we can achieve this? Can we discuss somewhat about it? देखो, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में
पावर को ट्रांसफर करना है विदाउट एनी डायनामिकल बिहेवियर. ओके, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, ओनली वोल्टेज शुड चेंज. The level of Ma'am, voltage this should change. happens. Huh. Ma'am, this happens with the help of induction. Yes, this also called as a electromagnetic induction, है ना? What Yes, is the ma'am. principle of electromagnetic induction? E is equal to d phi by dt. हाँ वो तो है ही रे, बट अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन बताओ. म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन एक होता है ना, और दूसरा क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन. Mutual induction. Ma'am, mutual induction is that when current or we must say voltage passes through देखो one देखो coil. वोल्टेज तो कभी पास नहीं होता. मैंने सुबह भी, अच्छा सुबह Voltage दूसरा, apply होता है. हाँ वोल्टेज हमेशा अप्लाइड होता है. वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट. Yes. किसके कारण करंट फ्लो होगा? वोल्टेज के कारण. Voltage. अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज कारण बनता है. किसका कारण बनता है? करंट के फ्लो होने का. सो वोल्टेज इज ऑलवेज कॉज एंड करंट इज ऑलवेज इफेक्ट. ओके, हाँ अभी Yes, बताओ. Ma'am, when current flows through one coil, ma'am, it creates magnetic field as well, because whenever the currents pass, there is some magnetic field created. So from this magnetic field, the other coil which is in close vicinity to the first coil, there is some magnetic field which starts intruding with that coil, and then the EMF is generated in that coil. देखो दो कॉइल्स है यहाँ पे, है ना. दिस कॉइल आर म्यूचुअली इंडक्टेड कॉइल्स, है ना. विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, इफ current flowing from first coil it changes, then EMF will induced in a second coil. This is the principle of mutual induction. Okay, क्या करेंगे? सिर्फ करंट फ्लो होने वाला जो है फर्स्ट कॉइल से उसको चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड EMF होता है इनटू सेकंड कॉइल. बट ये होता कैसे है ये हम लोग थोड़ा सा एक बार देखेंगे. ठीक है, तो क्या करना है, ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है. ठीक है, ऐसा S. तो करंट ये सपोज ये आ गया. सो यू नो एनी करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग व्हिच इज डिनोटेड बाय फ्लक्स फाई. तो यहाँ पे फाई आ गया. ठीक है, अभी ये अल्टरनेटिंग है ना. अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना. कल हम लोगों ने डीसी जनरेटर में मैंने तुमको सिखाया ना कि कैसे क्वांटिटी अल्टरनेटिंग जनरेट करते हैं हम लोग, है ना. याद आ रहा है ना सबको? Yes. हाँ, तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या कि हर एक पॉइंट पे एट एवरी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज चेंजिंग. सपोज एट 0 सेकंड इट इज 0, at 1 second it will be showing some value, at 2 second it will be showing some value, at 3rd second it will be showing some value. Suppose at 10 second it is maximum, then again at 11 second it is reducing, then again 20th second it will be 0. So इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मतलब क्या? a particular value at that instant. मतलब when t is equals to 3 seconds तब कितनी वैल्यू, when t is equals to 10 seconds तो कितनी वैल्यू, when t is equals to 20 seconds तो कितनी वैल्यू. हर एक इंस्टेंट पे वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है. तो AC is always having instantaneous value. ठीक है, तो अगर ऐसा चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग करंट अगर फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है? हमेशा चेंज हो रहा है. तो हमको हाथ से उसको रोटेशन देने की जरूरत है क्या? मुझे बताओ. हम लोग डीसी जनरेटर में रोटेशन क्यों दे रहे थे? रोटेशन क्यों दे रहे थे? क्योंकि हमको क्या चेंज करना था? एटलीस्ट हमको आइदर फील्ड, मतलब आइदर हमको जो फ्लक्सेस है जो कंडक्टर के साथ लिंक होने वाले हैं, आइदर हमको उनको चेंज करना था या फिर कंडक्टर को कंडक्टर की पोजीशन को चेंज करना था, है ना. तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? वी आर प्रेफरिंग टू रोटेट अ कंडक्टर इन केस ऑफ डीसी जनरेटर to achieve d phi by dt. But in this case, in the DC machines we are using DC supply. DC supply use कर रहे का मतलब क्या है कि with respect to time it is constant, it is not changing. Yes, so that's why we have to give physical rotation. Okay, but in case of transformer, when I am talking about transformer, I am using AC supply. This supply itself is changing with respect to time, so no need to give any kind of a physical rotation. Okay,
So with respect to time, this current is changing. This is alternating current will produce alternating flux. लिखते वक्त ऐसे लिखना है. Alternating current will going to produce alternating flux. Alternating flux का ही मतलब क्या होता है? d phi by dt, जो टाइम के अनुसार क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं. एट पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे जीरो फ्लक्स हो जाता है, एक इंस्टेंट पे मैक्सिमम होता है, एक इंस्टेंट पे फिर से जीरो होता है. So with respect to time, these fluxes are continuously changing. Now this changing flux will link with the second coil also, है कि नहीं? अभी depend upon the number of turns. Suppose this is the N1 turns and these are the N2 turns. If N1 is greater than N2, तो उसको कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे हम लोग? There are two types of transformer, है ना? एक तो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. क्या? If N1 is greater than N2, हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप कैसे होगा रे? स्टेप डाउन होगा. हाँ देखो ना, N1 ग्रेटर है N2 से. सपोज N1 टर्न सपोज है 10 टर्न्स, N2 है 5 टर्न्स, तो 1/2 रेशियो मतलब 0.5 रेशियो बन गया ना, है कि नहीं? यस मैम, यस. हाँ, तो ये क्या हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया. यस. If N2 is greater than N1, then it will be step up transformer. तब उसमें क्या होगा? पावर इंक्रीज होगा, स्टेप अप होगा. ठीक है. यस. हाँ, तो मैं कहाँ तक थी? हाँ चलो, चेंजिंग फ्लक्स लिंक हो गए सेकंड कॉइल के साथ. अभी डिपेंड अपॉन द टर्न्स वेदर इट विल बी सेम स्टेप अप स्टेप डाउन, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा मतलब आएगा यहाँ पे E2, नोटेशन के साथ एकदम स्पेसिफिक रहने का. ठीक है, यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड हो गया? E2. यहाँ पे होने वाला जो वोल्टेज है इसको E1 नाम दे देंगे, क्योंकि वोल्टेज के बिना तो करंट आने वाला है नहीं. ठीक है, सो यहाँ पे E2 आ गया. E2 है और क्लोज्ड पाथ है. ये पाथ कैसे है? क्लोज. तो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर क्लोज पाथ दोगे तो करंट I2 फ्लो होता है. समझा? एंड नाउ दिस I2 विल फ्लो थ्रू दिस लोड. यहाँ पे लोड लगाओगे ना, कुछ टीवी है, फ्रिज है, फैन है, जो कुछ भी लगाओगे, तो इसमें से ये I2 फ्लो होता है और ये अप्लायंसेस तुम्हारा क्या होता है? वर्किंग करना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. इसको तुमको सिर्फ ये एक्सप्लेन करते आना चाहिए ट्रांसफॉर्मर का. ठीक है. So these are the small basic things which we requiring while we are going for the synchronous motor now. Okay, directly in your machine 2 syllabus will be dealing with the synchronous generator, or it is called as the alternator. Okay, everybody is clear with this, I hope. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Govind, have you taken attendance? Have you Yes, note ma'am. down only one Yes, ma'am. student Yes, is ma'am. absent? One student is Or absent. nobody is absent, I think so, no? 25 No, ma'am. One participants. student is absent. Okay. Roll number 5. हाँ ठीक है, चलो. So should we start with our actual syllabus now? Yes ma'am. Yes. अरे. ठीक है, 3-phase synchronous machines. So see this 3-phase synchronous machines. Have I told you about that the YouTube channel also, na? There also you will get a. Yes, ma'am. हाँ चलो. तो synchronous machines में देखो, synchronous machines are divided into synchronous generator, also called as alternator. Whenever we are dealing with the AC supply, the it is called as the alternator. When we are dealing with the DC, then it is called as the generator. And synchronous machines, again synchronous motors. Now सब तो बाजू में रहने दो. पहले सबसे पहले tell me what is the meaning of synchronous.
See, synchronous machines are the AC machines. And synchronous machines rotate with the synchronous speed ns. Now, what is this synchronous speed ns? From machine 1, you must came across this synchronous speed, है ना? What is this synchronous speed? Can anybody? सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं ना, सिंक्रोनस स्पीड पे काम कर रहा है। तुम मैम हमने नहीं किया ये at the same speed. क्या तुम लोगों ने क्या बोलो? तुम लोग ऐसे फ्रैंकली बोल सकते हो मुझसे, कोई बात नहीं है। सिंक्रोनस we haven't discussed this in the previous semester. Without discussing this machine, मतलब डीसी मोटर में तो चाहिए ना रे हमको डीसी। I think so you have solved some examples also on this. मैम Means- शायद नेम कुछ और होगा। नहीं 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 ना, ये बहुत बड़ी चीज है। चलो ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें क्या है। तो सिंक्रोनस स्पीड इज डिनोटेड बाय ns, कैपिटल N to the base S, and it is 120 f by p. Now what is this? See 120 f by p, और स्पीड है ना तो आरपीएम में रहता है। इट इज अ स्पीड, ओके। सिंक्रोनस स्पीड जो है ये स्पीड है, और कैसे निकालते हैं हम लोग ये सिंक्रोनस स्पीड 120 f by p करके। तो देखो मेरी बात सुनो, व्हाट इज p? p इज द नंबर ऑफ पोल्स। नीचे लिखेंगे यहाँ पे व्हाट इज p? p where p is equals to number of poles in a motor, ठीक है। and what is f? what is f? f is equals to frequency. frequency कितना है अपना? which is equals to 50 hertz, right ना? और अमेरिका का फ्रीक्वेंसी कितना है? इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज है। अमेरिका का कितना है? अरे बोलो। नो आइडिया। हाँ क्या ही पता मैम। 50 हर्ट्ज 50 नहीं है उनका, 60 पे है, ठीक है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स 50 पे काम करते हैं। तो चलो ठीक है। तो इफ आई सेड माय जनरेटर और माय मोटर इज 4 पोल मोटर। कितने पोल की मोटर है? 4 पोल की मोटर है सपोज। हाँ, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमको देखो। सपोज नंबर ऑफ पोल्स ऑफ माय मोटर इज 4, हाँ, एंड फ्रीक्वेंसी एफ इज तो फिक्स है 50 हर्ट्ज। सो कैन आई फाइंड आउट ns फॉर 4 पोल? ns निकाल सकते हैं ना? 120 f कितना हो गया मुझे बताओ? 50 एंड होल डिवाइडेड बाय हाउ मच? 4। कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मच इज दिस? 150. हाँ 150 नहीं रे, कुछ भी मत बोल। 150 1500 हाँ 1500, ठीक है, आरपीएम। तो ये बना तुम्हारा सिंक्रोनस स्पीड व्हेन योर नंबर ऑफ पोल्स आर 4, ठीक है। वैसे ही अगर नंबर ऑफ पोल्स तुम्हारे 2 हो, कितने नंबर ऑफ पोल्स? 2 है, तो मुझे बताओ कितना आएगा ns? तुम लोग के हाथ में पेंसिल पेन कुछ तो रहना चाहिए। हाँ, सो ns for p is equals to 2 is how much? 3000 rpm, right? Then tell me ns for p is equals to 8. ns बताओ, चलो जल्दी जल्दी। p is equals to 8 किया, कर दिया मैंने। 6 किया पहले, चलो 6 किया। अभी बताओ कितना आरपीएम आएगा? यू गाइज आर कैरिंग कैल्सीज ना? 1000 मैम। 1000, ठीक है 1000। हाँ, देन सेम अभी p को 8 कर दो।
750. 750. कितना आया? 750. 750. So what you are observing? What are your observations with this? 750 पक्का ना? जैसे जैसे पोल्स बढ़ते हाँ, जा रहे हैं हाँ. वैसे वैसे सिंक्रोनस स्पीड रिड्यूस होती जा रही है। सिंक्रोनस स्पीड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पोल्स हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो Increase कर अगर रहे हैं। हमको मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, ध्यान से सुनो, अगर हमको मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है तो हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? हाथ से तो जाके मोटर को पकड़ नहीं सकते ना, पोल से चालू ना। मोटर को। हाँ, वेरी गुड। Poles हैं, poles. हाँ, so we can control the number of poles so that we can control the speed of synchronous motor. Understood this fact? And this, ये Yes. तो तुमको अभी पक्का याद में होना चाहिए। अगर मैंने तुमको कभी भी पूछा ना कि 2 पोल मोटर है, NS कितना आएगा, तो तुमने ऐसे फट फट से बोलना चाहिए, मैम 3000 है। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर बोला ना 4 पोल मोटर है, NS कितना होगा? 1500 होगा। 8 पोल का मोटर है, NS कितना होगा? 750 RPM होगा। इसलिए ये इतना मैंने निकाल के दिया है। So this speed is called as the synchronous speed. The synchronous speed is the speed of a field. Synchronous speed किसका स्पीड रहता है? कौन से फील्ड का स्पीड रहता है? ये मेन फील्ड का स्पीड रहता है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना पहले। मेन फील्ड मतलब विच फील्ड? ये वाला फील्ड जो इस मैग्नेट से क्रिएट होगा। यहाँ पे हमने बोला दिस इज एन पोल, दिस इज एस पोल। तो ये सारे देखो, ये सारी जो बातें हैं ये डीसी के लिए चल रही थी, बट जब हम लोग अभी एसी के बारे में बात करेंगे तो फील्ड इज ऑलवेज रोटेटिंग। फील्ड क्या है? फील्ड इज अ रोटेटिंग फील्ड, है ना? सो ये जो रोटेटिंग फील्ड है, इसका स्पीड इज नथिंग बट दिस ns, which is called as the synchronous speed. ओके, भी और इसके डिटेलिंग में जाना है तो हमको देखो, एक तुमको लेक्चर बताती हूँ मैं। वो लेक्चर आज सबको गो थ्रू करना है। See this one, huh? This lecture बेसिक कंसेप्ट देखा तो और अच्छी बात है। देन उसके बाद एवरीबडी इज एबल टू सी दिस स्क्रीन ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो है ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, तो इसको थोड़ा सा देखना है कि कैसे फील्ड क्रिएट होता है और क्या होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आज थोड़ा होमवर्क रहेगा। फिर सिर्फ देखो, ऐसे है कि नहीं? देखो, समझा समझा, नहीं समझा तो मैं हूँ बताने के लिए। फिर वैसे हम लोग कवर करने वाले उसको फिर से। ठीक है, सो फार वी वर डीलिंग विद द डीसी। हम लोग अभी तक है ना डीसी से डील कर रहे थे। तो डीसी में क्या है ना, कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं होता, नथिंग विल चेंज। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसी, तो एसी में क्या होता है कि देखो, एसी में at every stage whatever quantity you are dealing with na, at every stage that quantity is changing like this, and it is following sinusoidal behavior as we have seen in the last lecture. So देखो, यहाँ पे एक वैल्यू है वोल्टेज की, यहाँ पे एक वैल्यू है, एट दिस इंस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू है ना, एट दिस इंस्टेंट अगेन 0 है, एट दिस इंस्टेंट नेगेटिव मैक्सिमम में जा रही है। तो इस चेंजिंग फ्लक्स के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है उसका नेचर भी चेंजिंग रहता है। वो अपने खुद के स्पीड से भागती रहती है मतलब क्या होती है? रोटेट होती है।
without any physical movement. This field is again also rotating. 3-phase system जब हम लोग सीखेंगे, R, Y and B. This is R phase, this is Y phase and this is B phase in a star connection. तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में सीखे थे क्या? स्टार कनेक्टेड सिस्टम, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम. हाँ Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. तो ये जो 3-phase सिस्टम है, इसमें से जब भी करंट पास ऑन करते हैं हम लोग, तो जो फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है ना, दैट फील्ड इज नथिंग बट द रोटेटिंग फील्ड, एंड उस रोटेटिंग फील्ड का स्पीड इज नथिंग बट द सिंक्रोनस स्पीड ns. तो अभी ज्यादा अगर नहीं भी समझ में आए तो भी ठीक बात है, अभी आगे आगे जैसे जाएंगे तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्यों डेल्टा ही लेना है, क्यों स्टार ही लेना है, कैसे ये फील्ड जनरेट होगी, क्यों उसका स्पीड ns 120 f/p है. That everything we will smoothly going to discuss. But at present तुमको क्या याद में रखना है? The ns is equals to 120 f/p. 4 पोल का है तो 1500, 2 पोल का है 3000, 6 पोल का है 1000, 8 पोल का है 750 rpm. ठीक है. नाउ जो अपने जनरल मोटर्स होते हैं उसमें फील्ड का स्पीड, फील्ड ये जो फील्ड है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड और कंडक्टर ने जनरेट किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड वो डिफरेंट रहते हैं. ओके. द स्पीड ऑफ मेन फील्ड, द स्पीड ऑफ मेन मैग्नेटिक फील्ड is called as a synchronous speed, and the speed of field which is generated by this conductor, it is called as the rotor speed. है कि नहीं? तो these two are the difference. But in case of synchronous motor, your rotor will also rotate in the same speed with the stator speed. So that's why. Am I audible, everyone? Yes, yes. Yes. So that's why other motors are called as asynchronous motor. वो synchronous में नहीं रहती, वो क्या होती है, हमेशा somewhat less speed से घूमती है than the synchronous speed. So that's why those motor are called as asynchronous motor. Whereas in case of synchronous motor, both the rotor and stator, they are moving with the same speed, and that speed is nothing but the synchronous speed, and that's why the motor name is given as the synchronous motor. Okay. Now again we'll come back here.